All students, you are most welcome in session number 2 of chapter number 4, quadratic equations. In the last session, we have done some of the questions of exercise 4.2 and you were supposed to do the remaining questions which you might have tried. Okay, I told you to do equation. I have formed the equation of question number 3 and I asked you to solve this question, solve this equation. Everybody has solved it or not? Question number 3, come please. Find the two numbers whose sum is, one number is this, second number is 27 minus x and the product is 182. Have you done it? This was the equation and finally we came to this equation. सभी लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ब्रेकिंग किया, स्प्लिटिंग किया. What you have done during splitting? Yes. 13 and 14. So my answer is 13 and 14. Question number 3. Question number 4. Question number 4. Find two consecutive positive numbers, sum of whose square is 365. Let the one number is x and another one is x plus 1. इनका स्क्वायर कर दीजिए और इनको एडिशन करके make it 365. Very easy. This is my equation. Solve it. Everybody, जैसे मैं आता हूं उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्विंग शुरू कर देना चाहिए. मैथमेटिक्स में बैठना बिल्कुल भी नहीं. Always you have to do. So this is x square, इसको मैंने खोला. Now this is my equation. इसमें मैं क्या करूं बच्चों, जरा मैं 2 को कॉमन ले लूं या डिवाइड बाय 2 कर दूं, कुछ भी तरीका अपनाओ. So I have done this and now my equation is this. आगे इस इक्वेशन पे आगे चलिए. 182 वही पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला. 14 and 13 फटाफट ये हमारा हो रहा है. And I have got this answer, minus 14 and 13. You can take it for 13. So imagine that x is equal to 13. The second number will be x plus 1 is equal to 14. So answer is 13 and 14. Easy. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? Splitting the middle term, factorize, putting it to equating it to 0, you will find the answer. Question number 5. The altitude of a right angle, altitude यानी height, is 7 centimeter less than its base. इसका मतलब ये हुआ let the base is x. let the छोटे वाले को मानना है ना, तो let the base is x. तो एल्टीट्यूड कितना हो गया बच्चों? x minus 7 लेस है. टोटल अगर 7 होता तो क्या लिखते? 7 minus x. यहां क्या था? वो उससे 7 कम है. ध्यान रखना, ये कभी कभी ये भी बात सीखने जैसी है. और हाइपोटेन्यूज देखा है 13. Find the other side. Very very simple. Apply Pythagoras theorem. ये मेरा base, ये मेरा altitude, ये मेरा hypotenuse. Apply the Pythagoras theorem. Base square plus
परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। चलिए करिए सॉल्व, बस अब तो फटाफट हो जाएगा। एवरीबडी प्लीज कम कम कम, एंड यहां पर पहुंच जाइए। 2 कॉमन ले लीजिए सब बच्चे। ये कभी कभी ऐसा ध्यान रखना, थोड़ा इजी हो जाता है ना, कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो गया। अब 60 है और 7, एडिशन शुड बी 7 एंड मल्टीप्लीकेशन शुड बी 60, सो 15 और 12 into 5। Okay, x minus 12 plus y x minus 12, we have got x minus 12 and x plus 5. So we have got x is equal to 12 or x is equal to minus 5. Height cannot be negative, so it will be, the base should be 12 and height should be 5. Anybody have some confusion? Do you have any confusion? Easy question. Everybody do it. Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. वही क्वेश्चन जो पहले आपने किया था अभी कुछ वो पहले एग्जांपल में, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस में 3 जोड़ दीजिए, मोर देन 3 of twice of that number. Let the item produced on that day is x, then cost of production will be this. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको 90 के इक्वल रख दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 90, आई हैव मेड द इक्वेशन। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। 90 into 2 180, डिवाइड द 3, 15 into 12 is 180. Okay. You made this, factorize this. So x can be either 6 or x can be either minus 15/2. कैसे आता है ये बार बार समझाना पड़ेगा क्या? x minus 6 को put x is equal to 6 is equal to 0, x will be 7. Put 2x plus 15 equal to 0, x will be minus 15/2. Take positive, number of pieces is 6, तो कितना हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 2x plus 3 होना चाहिए ना, तो कितना हो गया बताओ? 2 into 6 plus 3 is equal to 15. हो गए? सभी लोगों ने किया था ना ट्राई, सबके आंसर मेरे आंसर सेम आ गए, सभी ने किया था ना। चलिए आ जाते हैं, अब हम थोड़ी नई चीज पढ़ रहे हैं, अब बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, एक और तरीका पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो पहले एग्जांपल लो। मान लिया आपके पास ऐसा है कुछ, नहीं ऐसा, मान लिया ऐसा कोई कंडीशन है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूं बताओ? अब क्या करना? कुछ भी नहीं करना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट किया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये मेरा आंसर, ये तो बहुत ईजी है। सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू +3 एंड -3। जब कभी अंडर रूट लोगे तो ये ध्यान रखना कि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो दोनों आंसर 3 भी है और -3 भी। पहली बात समझ में आ गई? ये तो एक्स स्क्वायर -9 था, अब ऐसा आ जाए तो क्या करोगे? ऐसा आ जाएगा तो क्या करोगे? आ जाओ इधर,
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहले समझो चीज को, मैं अभी बहुत पहले समझो, फिर मैं आपको कैसे होल स्क्वायर बनाना है वो बताने वाला हूं। यहां होल स्क्वायर है, अब मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको लिख सकता हूं x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, टेक अंडर रूट बोथ द साइड्स, इट विल बिकम x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। Yes, at one condition we can say x plus 2 is equal to 3 and second condition होगा x plus 2 is equal to minus 3. When we take x plus 2 is equal to 3, x will be 3 minus 2 1 और ये हो रहा है x will be minus 5. ये मेरा सेकंड इक्वेशन आया, सेकंड सॉल्यूशन आया। देखो जरा, सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ये मेरा 1 and minus 5। ये बताओ ये कंडीशन कब आती है? मेरे पास ये आया हुआ है, एक बताओ ये वाली कोई चीज है क्या? एक्स स्क्वायर, जरा देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बेसिकली ये मेरे पास इक्वेशन थी। इसको मेरे को क्या करना है, ऐसा इसने कह रहा है कि ऐसा बन जाएगा x प्लस 9 होल, सॉरी क्या था, x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल, ऐसा बन सकता है क्या? ऐसा कैसे बन सकता है? बस यही समझ लो आप, ये अगर आपने समझ लिया बस हो गया आगे का सब काम। इसको मैंने ऐसे बनाया, हो सकता है क्या? चलो अच्छा बच्चों, मुझे बता दो एक बार होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो बस। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर 2 और ए का मल्टीप्लीकेशन बी का मल्टी और बी स्क्वायर, फॉर्मूला बराबर है। अब इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना, बताओ कैसे बनाऊंगा? तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है 2 इंटू एक्स, यहां ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करूं, इंटू 2 तो था ही, इंटू 2 तो था, ये 4x है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर 4 को जोड़ दूं और एक 4 को माइनस भी कर दूं और माइनस 5 पहले से मेरे पास है, मैंने क्या किया, 4 को जोड़ा और 4 को घटाया, कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -4 -5 रह जाएगा और ये बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा टेक्निक है इक्वेशन को सॉल्व करने का, मेकिंग द स्क्वायर। एक और अगला आ रहा है, जरा ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अकेला हो मान लिया, मान लिया आपके पास दूसरी कंडीशन आई है कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, बस और कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ कैसे करेंगे? इसको भी बनाओ पूर्ण होल स्क्वायर बताते हैं। तो इसको क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बराबर है क्या ये वाली बात? कुछ जमी क्या? ये जो मैंने किया है, इन्होंने ये लंबा चौड़ा जो समझा के रखा है, मैंने सीधे सीधे समझा दिया और ये मेरा उसका आंसर भी आ गया। वापस से देख लो, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, देख लो, केवल होल स्क्वायर बनाया है। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, मस्त प्रैक्टिस हो जाए, चिंता मत करो। मैथमेटिक्स में डू द क्वेश्चंस मोर एंड मोर, एक वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहां तक पहुंच गए? अब मेरे पास मान लिया एक इक्वेशन आती है, ये वाली, नहीं ये वाली, ये वाली। चलो सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे आज। इसको सॉल्व कर दिया तो समझ लो सब आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, लिखो सब, सभी लिखो मेरे साथ। 3x स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 5x, माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। करो सॉल्व, दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 3 है, 3 है, जो कि कोई स्क्वायर टर्म नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहला तरीका ये मेरा बन गया 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको जरा मैं बनाता हूं होल स्क्वायर, तो 9x को मैं लिखता हूं 3x का होल स्क्वायर। अब मेरे पास 2 है इंटू 3x है, 6x हो गया, लेकिन मुझे लाना है 15x। कैसे लाऊं? एक काम करूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 30 हो गया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दूं। बन गया कि नहीं बना? 15x बना कि नहीं बना? बन गया। तो इसके फिर आगे 5/2 का होल स्क्वायर को जोड़ दूं और 5/2 के होल स्क्वायर को माइनस कर दूं, प्लस 6 एज इट इज है। ये काम कर सकता हूं क्या? एंड इफ यू कैन डू दिस, अगर मैं ये कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5/2 हो, क्या है 5/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, और बुक में देखना है तो भी देख सकते हो, सेम चीज। ये मेरा बुक का काम, ये मैं बुक में इसको जो और कैसे 1/4 कैसे आया ये भी देख लो। देख लो बुक में क्या किया है। यहां से इसको भी सॉल्व करके ये 1/4 भी निकालते हैं। अभी करते हैं, ये आगे कर रहे हैं, ये आगे किया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस को 6 पहले रखो और माइनस 20/5 इधर लिख लो। पहला काम तो ये करो, है ना, ताकि गड़बड़ नहीं हो माइनस प्लस का। फिर वापस से लिखो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ले लो एलसीएम, ये हो गया 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? और ये हो गया
3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0। आ गया? सभी बच्चों के यहां तक पहुंच गए? अब इसको आगे और कैसे सॉल्व करेंगे और बताओ। अब इसको आगे करो। अब मैं क्या करूंगा, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेता हूं, ये मेरा बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट इन बोथ द साइड्स, लिखो लाइन, टेक स्क्वायर रूट्स इन बोथ द साइड्स लिखो, एंड फिर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहां तक सब बच्चे पहुंचो, एक बार यहां तक सब बच्चे पहुंचिए, करिए। बुक में भी चलिए, बुक में भी क्या करता देखते हैं। यस, बुक में यहां पहुंच गया और बुक में ये इसको यहां तक ले लिया। अब आगे क्या करना, एक बार प्लस को रख के रखना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड यू कैन पुट 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। चलो अब वापस सोल्व करो, करते जाओ, मैथमेटिक्स में यही तो मजा है। तो 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, ये हो रहा है 2 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 5, ये हो गया 6 प्लस 6/2, ये हो गया 3, तो 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 पहला आंसर आया। करिए सॉल्व, सेकेंड वाला भी करिए। 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, या 2 एलसीएम लिया, माइनस का 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ गया 2/3। सभी बच्चे एक बार इस प्रॉब्लम को 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी करना है करो और इस आंसर पे पहुंचो, इस आंसर पे पहुंचो। कोई डाउट हो तो दोबारा से देखो, पूरा देख लीजिए। ये सॉल्व किया, ये किया, इसको मैंने वापस यहां एलसीएम ले लिया और ये आ गया, इसको इधर ले गया, एक बार प्लस एक बार -2 रखा, करो सॉल्व। लेकिन बच्चों ये पहला मेथड है, यहां मैंने 3x स्क्वायर को 9x स्क्वायर बनाया था 3 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा कर सकता हूं क्या 3 से डिवाइड कर दूं? तो भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बताओ। इफ आई डू लाइक दिस, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 मेरे पास है, आई डिवाइड द इक्वेशन बाई 3, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3। इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बस अब यह अगर आपने बना ली ना, बस आपकी गाड़ी क्लियर हो गई। इसको होल स्क्वायर यदि आपने बना लिया, तो बुक में भी कर रखा है, सेम चीज बुक में भी करी हुई। बुक का समझ सको तो बुक का समझ लो, नहीं तो अपने आप ट्राई करो, मेरे साथ चलो। मेक दिस इक्वेशन, फर्स्ट यू कैन मेक इट होल स्क्वायर। बताओ कैसे करोगे? ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये कहां से आ गई? ये अलग है, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर, सॉरी माइनस करो,
-2 इंटू एक्स इंटू, मुझे लाना है 5/3। तो सबसे पहले तो मैंने 2 को लाया, उसे 2 डिवाइड कर दूं और 5/3 को एज इट इज रख दूं क्या? 1/2 को मैं इसलिए लाया कि ये 2 मैंने लाया ना, तो ये 2 यहां भी लगाऊं, ये 2 लाया तो ये 2 यहां भी लाया, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर लिया, बराबर हिसाब है। 5/3x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 5/3x है कि नहीं है? यहां पर भी 5/3x आया कि नहीं आया? अब मैं आ गया, तो अब मुझे क्या करना है? मेरे पास एडिशनल टर्म क्या है? एडिशनल टर्म ये है। इसको अगर मैं आगे एक और प्लस कर देता हूं, 5/6 का होल स्क्वायर और -5/6 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस 2/3 ऑलरेडी है। क्या समझ में आया? 5/6 के होल स्क्वायर को जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि यहां मेरे को 2ab में मिल रहा था, और 5/6 के होल स्क्वायर को माइनस कर दिया। बस अब मेरी गाड़ी आ गई, ये मेरी गाड़ी यहां पहुंच गई। ये बना, ये क्या बनेगा? ये बनेगा x - 5/6 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा? माइनस का 5/6 और प्लस का 2/3, 5/6 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस का 2/3। ये मेरी चीज बची। हाँ, सब बच्चे कोशिश करो क्या किया। देखो ये इधर देखो, सेम चीज, और ये आ गया इधर। मैं बुक के भी साथ चल रहा हूं और अपने हिसाब से भी आपको समझा रहा हूं। एक एक चीज को धीरे 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 समझा रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, माइनस किया, और ये मेरा आ गया। माइनस का 5/6 का स्क्वायर था, तो मैंने लिख दिया 25/36। अब मैंने इसको जरा माइनस को इधर लिख दिया, तो एक बार ये बन गया। इसमें मैंने एलसीएम लिया 36, ये बन गया 3 को 36 डिवाइड कर 12, तो 12 इंटू 2 424, ये आ गया। अब मेरे पास बचा ये, इसको मैं उधर ले गया, ये इसको दोनों अंडर रूट हटाया, यहां पर मेरी गाड़ी पहुंच गई। फिर एक बार प्लस को लिया, एक बार माइनस को लिया, जरा इसको सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 6, एलसीएम लिया 5 + 1 यानी 6 + 6/6 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 1। और यहाँ इसको दूसरे को सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/6, ये बन जाएगा 2/3। मेरा आंसर पहले भी यही था और अब भी यही है। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आ गई? ये आ गया, ये 1 और ये 2/3। एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 15 एग्जाम्पल है, अभी तो करते जाओ, बहुत एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल को समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एग्जाम्पल 3 में कोई इक्वेशन थी ये वाली, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, इसको 2 को हटाने के लिए पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया है। करो आप भी, आ जाओ करो, ये कर दिया मैंने 2 से डिवाइड। बनाइए होल स्क्वायर, x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, ये 1/2 यहां पर भी ला रहा हूं और 5/2 पहले से था,
तो फिर क्या करूं, प्लस का 5/4 का स्क्वायर को जोड़ दूं, माइनस 5/4 के स्क्वायर को घटा दूं, प्लस का 3/2 पहले से है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये मैंने किया, यहां भी देख लो, बुक में भी देख लो, सेम चीज बुक में भी है, यही काम बुक में किया। ये 5/4, ये प्लस, करो सॉल्व। यहां पर पहुंच गए आप, x माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस का 3/2, इसको मैंने इधर माइनस है ना तो इधर लिख लेता हूँ। 16 को एलसीएम लिया, 24 माइनस 26, ये आ गया दिस, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये प्लस माइनस 4, एक बार प्लस रखो तो आ गया 5/4 प्लस 1/4, एक बार रखो माइनस का तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6/4 यानी 3/2, ये आ गया 1। आंसर अगेन 3/2 और 1। बुक में देखो क्या लिखा है, यस। अच्छा है, इंटरेस्ट आ गया अब तो, अब सब समझ में आ गया। इसको सबको मिटा रहा हूं, देखते जाओ क्या लिखा है। बस यहां समझने जैसा है, बस ये वाला हिस्सा। अभी मैंने इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड किया, पर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं, तो भी तो 4x² आ रहा है, तो भी तो हो सकता है। बुक में नहीं दिया गया। एक बार आप ऐसा करो, पूरे को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस से इसको होल स्क्वायर बना के देखो। मैथमेटिक्स में कोई भी रास्ता पकड़े, सॉल्यूशन आना चाहिए कम। ये मैंने आपके लिए किया है, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4x² माइनस 10x और प्लस का 6। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, वापस चलो, ये क्या किया है 2x², ये मुझे 10 लाना है तो 2ab, ये 2x। अब मैं क्या करूं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 10, और ये 5/2 का स्क्वायर यहां जोड़ दूं, ये इसको घटा दूं, ये 6। अब मेरे पास आ गई ये पोजीशन, क्या आ गई, ये पोजीशन। करो सॉल्व इसको भी जरा। तो 2x माइनस 5/2, फिर इसको ऐसे किया, यहां पर मैंने 4 का एलसीएम लिया, ये मेरे पास वापस इधर लाएंगे 1/4, यहां पर मेरी गाड़ी पहुंचनी चाहिए। उसके बाद एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 से मल्टीप्लाई करके भी कीजिए। आंसर आना चाहिए। होल स्क्वायर कैसे बनाया ये भी देख लीजिए। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 8 करें। ये 7 है, कौन सा है, 8 है, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है, यहां पर इक्वेशन एक्चुअली ये थी, 5x² माइनस 6x माइनस 2 था। इसको 5 को, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये बन गया 25। पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25x² माइनस 30x माइनस 10। अब बताओ मेरे को क्या करना है। यहां तो हो रहा है 5x² माइनस 2 इंटू 5x, मुझे चाहिए 30, तो क्या करूं, 6 कर दूं, 6 नहीं, ओहो 3 और प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 10, बराबर है, बराबर है। अब तो आप कर लो फटाफट सारे क्वेश्चन।
ये बन गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 9 और माइनस का 10, ये आ गया इधर माइनस का 19 और इसको मैं उधर ले गया तो 19 जो है ना, 19 जो है वो होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर टर्म नहीं है, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट, यहां ले जाओगे, इसको एक स्टेप में लिख देता हूं, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19. Taking square root from in both the sides, you will get this. अब एक बार प्लस रख, ये आ गया x इज इक्वल टू करो, तो x इज इक्वल टू अपन ने कर दिया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 5, ये आ गया मेरा. एक बार प्लस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया. एग्जाम्पल नंबर 8. ये एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 9 करिए, फोन चेक कर लें. 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इजी है भैया, ये तो 2x बन रहा है मेरे तो डायरेक्ट ही, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और यहाँ है 3, तो क्या करूँ, 4 4 या 12, तो 4 इंटू यहाँ करूँ 3 से 12, ये डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, हाँ ये हो जाएगा. फिर क्या करूँ, 3/4 नहीं, 3/4 नहीं, अंदर क्या बच रहा है, 3 तो ना, 4 1, एक मिनट रुको, 2x 2 इंटू 2x, अपने को चाहिए 3x, तो 3 आ रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो यहाँ पर बनना चाहिए 3/4 का स्क्वायर. 2 इंटू 2x 4, यहाँ है ऊपर 3, 4 से 4 कटा, यस 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 यस, 3/4 लेना, बिल्कुल सही है. तो 3/4 का स्क्वायर और माइनस कर दो इतना का इतना, 3/4 का स्क्वायर को माइनस कर दो, प्लस का 5 पहले का बचा है, इसको सॉल्व कर लो. एग्जाम्पल नंबर 9. चलिए ये आ गया 3/4, इसका स्क्वायर एक बार जोड़ा, एक बार हटाया, घटाया उसको, इसको सॉल्व किया. अब ये इसको इधर ले जाना, इसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ये माइनस करेंगे ना, इसलिए इसको जरा करेंगे. तो ये आ रहा है 71/16. 71, ये भी होल स्क्वायर नहीं है, कैसे करेंगे, तो ये माइनस आ गया. माइनस का स्क्वायर रूट कैसे लोगे, ये तो माइनस आ गया भाई, तो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्या लिखोगे, दिस कैनॉट बी नेगेटिव, सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता. स्क्वायर का अंडर रूट जब करें, नेगेटिव का जब अंडर रूट करेंगे तो इट विल बी इमेजिनरी नंबर, इट विल नॉट बी रियल नंबर. तो रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा, जो आप बड़ी वाली क्लास में पढ़ोगे, आयोटा, आयोटा नाम से आएगा, इमेजिनरी नंबर. चलो अब आज के दिन का लास्ट एक फॉर्मूला बता के मैं सेशन को एंड करने वाला हूं, और फॉर्मूला है श्रीधराचार्य ने जिसको इन्वेंट किया है, और फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने इन्वेंट किया. फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब कोई भी, ये तीसरा मेथड आ गया है. पहला मेथड क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. दूसरा मेथड था मेकिंग द स्क्वायर होल स्क्वायर, और थर्ड मेथड ये आ गया है.
क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको मैं आज पढ़ा देता हूं और नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल 10 से मैं शुरू करूंगा, एंड आई विल डू द एक्सरसाइज 4.3 ऑल्सो इन माई नेक्स्ट क्लास। लेकिन अभी मैं आपको जरा ये फॉर्मूला कैसे आया है वो जरा समझा देता हूं। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन समझ में आना चाहिए। ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको मैंने x से तो b बाई एक a से डिवाइड कर लिया, इसको होल स्क्वायर मैंने बनाया, तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका लगाओ। ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ मुझे b बाई ए चाहिए, तो क्या करूँगा, पहले 1/2 लाऊं और फिर इंटू b बाई ए। ये 1/2 क्यों लाया, क्योंकि मेरे को 2 से 2 उड़ाना था, तो इस b बाई 2a से स्क्वायर को एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा, फिर c बाई ए लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करूंगा, इसको उधर ले गया, ये फिर इसको अंडर रूट किया, तो ये बन गया, सभी बच्चे देखेंगे, और ये इक्वेशन आई, और ये सारा हमारी बुक में प्रॉपरली समझाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एंड दिस इज माय फार्मूला, एंड दिस वी कॉल इट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 तो नेगेटिव हो गया। इट शुड, इफ इट इज लेस देन 0 द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। और ये आपको आंसर लिख दीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर दीजिए, एंड दिस इज फॉर्मूला नॉन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड द नेक्स्ट क्लास we will do all the examples from 10 to 15, पर before coming to that class जो आपने पहले पढ़ा है आज, इसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। आज मैंने बहुत धीरे धीरे और बहुत माइन्यूटली आपको समझाया है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको समझ लें और एग्जाम्पल 10 से लेके 15 तक, और हो सके तो एक्सरसाइज 4.3 को ट्राई करेंगे, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।